में सेक्शन 2D करा. According to section 2D, I'm just revising the things with you so that if anybody has missed the class, तो उसको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हमने क्या करा है. So complaint is something which is defined in section 2D. According to section 2D, complaint is an allegation which can be in the form of oral or in writing. According to section 2D, it is made to a magistrate with a view that he should take some action. This complaint can be against a person who is known to the complainant or may be unknown for him. It does not include a police report generally, but where an investigation is done by a police officer, and during the after the investigation or at the completion of the investigation, he reached to the conclusion that that case is actually a non-cognizable case. So here that report of the investigating officer, in spite of becoming the police report, can be considered as the complaint. And here that investigating officer can be considered as a complainant. This is given in the explanation of section 2D. Thereafter, dear student, I discussed with you section 200, which is related with the examination of the complainant. And according to section 200, examination of complainant is something which is must, right? ठीक है, तो एग्जामिनेशन जो होगा that should be reduced into writing, and at least the substance of the examination should be reduced into writing, which should further be signed by a complainant. And in case if there is any witness of the complainant, then it should also be signed by the witness and by the magistrate. ठीक है? Yes, इतना क्लियर था आप लोगों को? Any doubt till now? Then I will go to the provision part. तो प्रोविजन में क्या था बेटा? प्रोविजन में ये था कि if the complainant is a public servant or a court, ठीक है, or the court, then there is no need to examine if the complaint is in writing. This is very important point कि आप जो एग्जामिनेशन को एक तरीके से रिलैक्स कर रहे हो. जनरल रूल ये है कि एग्जामिनेशन इज मस्ट अंडर सेक्शन 200, but if the complainant is either the court or a public servant and simultaneously complaint is in writing, ठीक है, and है, तो that means एक तो या तो इन दोनों में से कोई हो और complaint is in writing, then there is no need to examine the complainant. This is the proviso of section 200. याद है आप लोगों को यहाँ तक? Yes, any doubt till now? इसके बाद मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. दैट मीन्स अब मुझे लॉबी विजिबल नहीं होगी. ओके, आर यू गेटिंग माय स्क्रीन? आप लोगों को बैरक विजिबल हो गया है? ओके, नाउ कम टू सेक्शन 200. ठीक है, अब हमने बी पार्ट इसका पढ़ा था. फर्स्ट पार्ट मैंने अभी प्रोवाइजो का आपको एक्सप्लेन करा है. The second part is saying if the magistrate make over the case for inquiry or trial to any other magistrate under section 192, provided further that if the magistrate make over the case to another magistrate under section 192 after examining the complainant and the witnesses, the latter magistrate need not re-examine them. But इससे पहले what I need to explain you the meaning of the term taking cognizance. याद है कल की क्लास में हमने ये वर्ड जो है आपको बताया नहीं था, एक्सप्लेन नहीं करा था. मैंने कहा था कि व्हेन आई कवर्ड विद यू
सेक्शन 190 मैंने आपको सिर्फ बोला था टेकिंग कॉग्निजेंस मीन्स टेकिंग इनटू द नोटिस और डूइंग सम जुडिशियल एक्ट और अप्लाइंग द जुडिशियल माइंड, ठीक है। तो दैट इज अमाउंट टू टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बाय द कोर्ट। अब 190 जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट द टेकिंग कॉग्निजेंस, तो वहां पे मैं 190 आपको वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू लिंक इट विद सेक्शन 192। तो बेटा आर यू गेटिंग दिस थिंग कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैंने एक कीवर्ड उठाया, उसके बाद वो टॉपिक कहाँ पे है सीआरपीसी में वो कवर कर रही हूँ, उसकी इंटरलिंकिंग मैं कवर कर रही हूँ 190 एंड 192। अब आ जाओ 190 पे। Chapter 14 talks about the condition requisites for initiation of proceeding. तो इसमें फर्स्ट वर्ड जो है सेक्शन 190, the marginal note of section 190 says cognizance of offense by magistrate. तो cognizance of an offense का मतलब taking into the notice, applying its judicial mind, who has the power to take cognizance, that is given here that a magistrate can take cognizance, but which magistrate? क्योंकि magistrate includes so many magistrate, it can be judicial magistrate first class, second class or chief judicial magistrate, right? अभी हमने hierarchy of courts नहीं करा है, that we will cover after some time once we will over with our definition part, then I will discuss with you the hierarchy of court and the bodies under the CRPC। तो वहां पे मैं हिरार्की आपको कराऊंगी, बट अभी के लिए ये समझो कि मजिस्ट्रेट इंक्लूड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड सीजेएम। तो किस मजिस्ट्रेट के पास पावर है टू टेक कॉग्निजेंस? दिस सेक्शन सेज subject to the provision of this chapter, subject to the provision of this chapter, इसका मतलब क्या है? What is the literal meaning of these words? Anybody? कौन बताएगा इसका मतलब? अरिहंत, बेटा अरिहंत, आप बता पाएंगे इसका मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। Arihant, are you with us? Ayush, Yes, ma'am. yes, can you explain me what is the meaning, literal meaning of these words subject to the provision of this chapter? इसका मतलब क्या होता है? रिया, anybody? Yes, that means कि जो yes शेफाली, Ma'am, taking into account the other provisions as well. हाँ, taking into account other provision as well which are covered under this chapter, chapter 14. Very good. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके बाद क्या कहा गया है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एनी मजिस्ट्रेट। अब वर्ड क्या लिखा है देखो, एनी मजिस्ट्रेट, इसे मैं एक बार हाईलाइट करती हूँ तुम लोगों के लिए। एनी मजिस्ट्रेट टर्म लिखा है, तो एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे एनी मजिस्ट्रेट के बाद क्या लिख दिया? फर्स्ट क्लास। इसका मतलब कौन सा मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस? ओनली मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास and any magistrate second class, especially when he is so empowered by whom? By the CJM, ठीक है, then he may take cognizance of an offense। आगे क्या कहता है? किसके ले ऊपर लेगा cognizance? Upon receiving a complaint of a fact which constitutes such offense, upon a police report, and third point is suo motu,
that is upon information received from any person other than a police officer on or upon his own knowledge that such offense has been committed. ठीक. Subsection 2 says of section 190, the CJM may empower any magistrate second class to take cognizance under subsection 1 of such offense as are within the competence to inquire into or try. ठीक है? Are you getting this thing? तो generally who has the power to take cognizance? अगर आपको क्वेश्चन आता है कि who has the power to take cognizance, क्या आंसर होना चाहिए? कोई बात नहीं अरिहंत, आपका माइक वर्क नहीं कर रहा, आप चैट में लिख दीजिएगा नेक्स्ट टाइम से बेटा, बट आप एटलीस्ट हैंड रेज कर दो ताकि मेरे माइंड में ये इंप्रेशन हो कि स्टूडेंट है मेरे साथ। एटलीस्ट कोई बात नहीं, बेबी आप में से एक बार नहीं क्लिक कर रहा आंसर, आई एक्सेप्ट दिस थिंग, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, दैट विल नॉट अफेक्ट मी, बट द पॉइंट इज कि मुझे अटेंटिवनेस आपका चाहिए। तो एटलीस्ट आई वांट व्हेनेवर आई कॉल योर नेम यू प्लीज रेज योर हैंड। ठीक? अच्छा बेटा, हाँ, तो मैंने पूछा था आप लोगों को क्योंकि हमारा पेपर जो है बेटा एमसीक्यू बेस्ड आना है। अभी भी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है, तो इसीलिए साइमल्टेनियसली मैं आपकी वो प्रिपरेशन भी कराती हूँ। बताओ बेटा क्या आंसर होगा अगर आपको ये पूछा जाए हु हैज द पावर टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 और आपके पास ऑप्शन है JM1, JM2 बोथ और JM2 with the permission of the court or JM1 and JM1. मैम बोथ। हाँ, but JM2 can take only when he is so empowered by the CJM. तो बेटा these words should be clear, crystal clear in your mind. और आपको मैं बता दूं, आप लोगों के लिए बेयर एक्ट की कमांड बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखो बेटा सीआरपीसी में 3 चीजें हैं, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। यस पायल बोल बेटा, पहले आप बोलो। मैं वो सॉरी आंसर बताया तो शायद उसकी वजह से आप शो किया है रेज हैंड। अच्छा, देखो बेटा सीआरपीसी में 3 चीजें हैं, अगर इस सब्जेक्ट पे कमांड चाहते हो तो प्लीज आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी टीचर को सुनना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि हम खुद से पढ़ लेंगे, जैसे हम नॉर्मल, अगर मैं आपको सही बताऊं, कुछ कुछ एरियाज होते हैं जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से भी, कुछ चैप्टर्स होते हैं, बट सीआरपीसी एक ऐसा लॉ है जो आप बिना टीचर की हेल्प के नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और टू बी वेरी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, जितना मैं जो पढ़ाऊंगी ना उसके बाद भी एक्चुअल प्रैक्टिस जब करोगे तब बहुत कुछ सीखोगे। सीआरपीसी एक ऐसा एरिया है, आपका 70% मैं आपको कवर करूंगी, मतलब जो हम बेयर एक्ट पढ़ाएंगे क्लास में पढ़ाएंगे वो 70% कवर करता है बेटा आपका। बट जो प्रोसीजरल चीजें हैं कि जैसे सपोज केस फाइल होना है, कॉज लिस्ट क्या होती है, ये जब आप एक्चुअली में देखोगे कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस कैसी होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या टैक्टिक अप्लाई करता है, हाउ ही ट्राई टू कन्विंस द कोर्ट, ये चीज आप तब सीखोगे जब आप एक्चुअली में ऑब्जर्व करोगे कोर्ट में। समझ रहे हो? तो दिस इज वन एरिया, बट आपको इसे लर्न करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी टीचर को सुनो, बेयर एक्ट को ज्यादा से ज्यादा बारी रिवाइज करो, उसके बाद इंटरलिंकिंग करो, और लास्ट रिसॉर्ट जो आता है वो आता है आपका केस मटेरियल। सीआरपीसी में केस मटेरियल मैटर करता है, बट इंटरलिंकिंग केस मटेरियल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेयर एक्ट पे कमांड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अब हम आपको आगे बता रहे हैं 192 से रिलेट करवा रही हूँ इसे। अब देखो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, मेकिंग ओवर ऑफ द केस टू अ मजिस्ट्रेट। मेकिंग ओवर ऑफ द केस क्या होता है? एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में after taking cognizance of an offense make over the case for inquiry or trial to any competent magistrate subordinate to him। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, टेकिंग कॉग्निजेंस करा, ठीक है, कॉग्निजेंस तो ले लिया कंप्लेंट के ऊपर, जैसे कि हमारा भी सबसे पहले सेक्शन 2D में हमने देखा कंप्लेंट आई,
कंप्लेनेंट को एग्जामिन करा। जैसे ही उसने एग्जामिनेशन करा, ठीक है, अब उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट जो है, क्या उसने कॉग्निजेंस ले लिया? यस, उसने कॉग्निजेंस ले लिया एज ही हैज एग्जामिन द कंप्लेनेंट, ठीक है, तो उसने एक स्टेप करा। बट अभी जो है उसने टेकिंग कॉग्निजेंस तो कर लिया है, बट इशू ऑफ प्रोसेस नहीं करा है। इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक्यूज्ड को समन या वारंट एज द केस में बी इशू करना एंड आस्क हिम to be present before the court on the specified date and time, so that is issue of process। बट कोर्ट ने वो नहीं करा है। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, कोर्ट ने एग्जामिन करा, अभी कोर्ट को, बट स्टिल द कोर्ट हैज टू सी कि अभी जो है कि इशू ऑफ प्रोसेस करे या ना करे, वो डायलेमा में है। द कोर्ट इज इन काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन और इज इन दी is not that much satisfied कि एक्चुअली कंप्लेनेंट जो कह रहा है वो ट्रुथ है या फॉल्स है। उसका एग्जामिनेशन हो गया, बट स्टिल 1% कहीं डाउट है कोर्ट के माइंड में, मजिस्ट्रेट के माइंड में। तो कोर्ट इशू ऑफ प्रोसेस नहीं कर रही है, रादर द कोर्ट इज पासिंग एन ऑर्डर फॉर द इंक्वायरी। तो अगर वो इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर रही है, ठीक है, तो दैट इज अमाउंट टू दी कि कोर्ट जो है अभी टाइम ले रही है, और ऐसा ही ऑर्डर कोर्ट इशू कर सकती है अंडर सेक्शन 202। तो यहाँ पे जब टेकिंग कॉग्निजेंस के बाद कोर्ट ने जो है इंक्वायरी और मेक ओवर द केस आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस, मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी other competent magistrate subordinate to him, that is the making over। Subsection 2 says any magistrate of first class empowered in this behalf by the CJM may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate as the CJM may, by general or special order, specify, and thereupon such magistrate may hold the inquiry or trial। So are you getting this thing? कि any magistrate first class empowered in this behalf by the CJM, कि he has the power to make over the case, he can make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि बेसिकली इंश्योर करना कि एक्चुअली में देयर इज अ मटेरियल केस, देयर इज अ प्राइमा फेसाई केस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई केस है जहां पे मेकिंग ओवर होके आया है, दैट मीन्स एग्जामिनेशन तो होके ही आया होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अभी से 200 के साथ रिलेट कर रही हूँ बेटा मैं। यहाँ पे आपको ये क्लियर है 190 एंड 192? प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट, प्लीज आस्क योर डाउट। मैम 192 का फर्स्ट क्लॉज एक बार फिर से बता दो। हाँ हाँ प्लीज बेटा, इसमें क्या कह रहा है, देखो हमें ये पता चला था कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है, ही हैज अ पावर टू एम्पावर द सीजेएम टू टेक कॉग्निजेंस। और जनरली 190 क्या कहता है, JM1 जो है वो ले सकता है कॉग्निजेंस। अब 192 क्या कहता है, मेकिंग ओवर ऑफ द केस टू अ मजिस्ट्रेट, मतलब कॉग्निजेंस लेने के बाद, ठीक है, कॉग्निजेंस ले लिया, आफ्टर टेकिंग दी कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट को लगता है कि दिस केस इज नॉट ट्रायबल बाय मी, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ऐसा लगा, तो वो क्या करेगा, वो केस देगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम। तो इसका मतलब यह सीजेएम के पास जब केस आया है आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, अब उसके पार्ट पे ड्यूटी है कि वो मेक ओवर केस करे कि किसको इंक्वायरी करनी है या ट्रायल लेना है, तो किस कोर्ट को लेना है। तो दिस एक्शन अमाउंट टू मेकिंग ओवर ऑफ द केस। इज इट क्लियर टू यू पायल नाउ? यस मैम। ठीक है, तो ये बेटा क्लियर रहा आप लोगों को कि कॉग्निजेंस लेते हैं, कॉग्निजेंस लेने से बाद अगर मान लीजिए कई बारी किसी मजिस्ट्रेट को लगता है कि दिस केस इज नॉट ट्रायबल बाय मी, तो ही विल मेक ओवर द केस टू दी मजिस्ट्रेट।
अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मेक ओवर होता है अंडर सेक्शन 192 Yes, और 192 ma'am. में मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्दर केस देता है किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को या सेकंड क्लास को अकॉर्डिंग टू हिज कॉम्पिटेंस टू इंक्वायर और ट्राई दैट मैटर, तो दैट इज द मेकिंग ओवर। ठीक, अब इसे हम रिलेट कर रहे हैं बेटा 200 का प्रोवाइजो जो था उसके बी पार्ट के साथ। ये देखो बेटा ये वाला बी पार्ट जो था, if the magistrate make over the case for inquiry or trial to any magistrate under section 192, तो मजिस्ट्रेट के पास से मेक ओवर होके आया है, तो दैट मीन्स ऑलरेडी जो है एग्जामिनेशन तो हो गया होगा पहले ही, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट ने करा होगा जब कॉग्निजेंस लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ अ मजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस to another magistrate under section 192 after examining the complainant and witnesses है, क्योंकि अगर उसने कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस लिया है तो डेट मीन्स उसने एग्जामिन कर लिया होगा कंप्लेनेंट को, एग्जामिनेशन करना ही कॉग्निजेंस माना जाएगा ना कंप्लेंट केस का, तो और पुलिस रिपोर्ट के ऊपर भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है अगर उसने पुलिस रिपोर्ट को कंसीडर करके कोई ऑर्डर पास करा है। सेम वे अगर कंप्लेंट आई, कंप्लेनेंट को एग्जामिन करा, दैट मीन्स उसने कॉग्निजेंस ले लिया कंप्लेंट पे, राइट। तो अब क्या होता है, उसने एग्जामिन कर लिया होगा कंप्लेनेंट को, इसीलिए अब दोबारा से मेकिंग ओवर के टाइम पे दोबारा से री एग्जामिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नॉट री एग्जामिन। दैट मीन्स नाउ द मजिस्ट्रेट हियर इन केस ऑफ मेकिंग ओवर हैज द डिस्क्रिशन not to re-examine the complainant and his witnesses, if any. Are you getting me? Yes, beta. Beta, anybody can explain it to us, तो ताकि मुझे ये रिलैक्सेशन हो जाए कि यस आपको समझ में आया है। Any one of you who can explain. बेटा दिस इज वन ऑफ द टेक्निकल एरिया और सीआरपीसी ऐसा ही टेक्निकल एरिया है एक, इसीलिए आपको पूछ रही हूँ। क्या आपको समझ में ये चीज आ रही है ना कि कॉग्निजेंस लेने का मतलब ये होता है टेकिंग इनटू द नोटिस और अप्लाइंग इट्स जुडिशियल माइंड। तो दैट मीन्स कि अगर कंप्लेंट के ऊपर हम कहते हैं कॉग्निजेंस लिया है कि दैट मीन्स कंप्लेनेंट को एग्जामिन करा है, एग्जामिनेशन के लिए मजिस्ट्रेट को उसका माइंड अप्लाई करना पड़ेगा ना, जुडिशियल माइंड, टेकिंग इनटू द नोटिस लेना पड़ेगा, राइट। तो अगर मान लीजिए उसके बाद आफ्टर एग्जामिनेशन अगर उसे लगता है कि दिस केस इज नॉट द फिट केस ऑन विच ही कैन ट्राई और ऑन विच ही कैन पास एन ऑर्डर फॉर इंक्वायरी, सो ही मेक ओवर द केस टू दी सीजेएम। तो मैं सीजेएम को के पास से अगर आ रहा है तो अब दोबारा से जो है नीड नॉट री एग्जामिन, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मेकिंग ओवर होके आया है, ठीक है। अब देखो बेटा इसके बाद क्या होता है, 201 क्या कहता है, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। अब यहाँ पे आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। दिस सेज इफ द कंप्लेंट इज मेड टू अ मजिस्ट्रेट, ठीक है, कंप्लेंट किसी ऐसी मजिस्ट्रेट को मेड करा है हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, who is not competent to take cognizance, ठीक, of the offense, he shall, ठीक है, मैंडेट है उसके पार्ट पे, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है और उसने कॉग्निजेंस ले लिया जबकि उसे नहीं लेना चाहिए था, तो क्या होगा, वो प्रोसीडिंग कैसी हो सकती है, विशिएट हो सकती है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी, बट 2 मिनट दो मेरे को पहले, ठीक है। ये एक अलग स्टोरी चलेगी, इसको हम रिलेट करेंगे 460 से 465 है irregular proceedings which can vitiate the proceeding, which can vitiate the trial or which cannot vitiate the trial. तो just wait, ठीक है। बट पहले ये समझो, if the complaint is made to a magistrate who is not competent to take cognizance of the offense, he shall, if the complaint is in writing, return it for presentation to the
प्रॉपर कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। अगर राइटिंग में है कंप्लेंट तो उसको एंडोर्स कर देगा, उसकी बैक साइड पे लिख देगा टू बी प्रेजेंटेड बिफोर दी सो एंड सो कोर्ट। लेकिन अगर मान लीजिए हमें पता है कि कंप्लेंट तो ओरल भी हो सकती है बिकॉज ऑफ सेक्शन 2D, ठीक है, तो कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग, देन डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट। इज इट क्लियर टू यू? बोलिए बेटा, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, अब यहाँ पे एक और इंटरलिंकिंग आती है। इंटरलिंकिंग यही होती है और इसका एक यही एक डिफरेंट मेथड है जो थोड़ा सा टफ पड़ता है। अब आपको ये इरेगुलर प्रोसीडिंग क्या है, ये कैसी होती है, विच कैन विशिएट द ट्रायल, विच कैन नॉट विशिएट द ट्रायल। एक सेकेंड दो मेरे को, मैं 460 पे पहले पहुंच जाऊं फिर आपको बताती हूँ। बेटा चैप्टर 35 is talking about irregular proceeding. Are you getting on my screen? बेटा आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है इरेगुलर प्रोसीडिंग टॉपिक? यस मैम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल नोट क्या कह रहा है, इरेगुलर प्रोसीडिंग्स, irregularities which do not vitiate proceeding, that means वो मिस्टेक है, irregularity means a kind of a mistake, ठीक है, बट अब वो मिस्टेक जो है अ स्मॉल नेचर ऑफ मिस्टेक है और वेदर इट इज टर्न इनटू अ ब्लंडर, तो ये हमें देखना होगा। अगर ब्लंडर कंसीडर हो गया तो दैट मीन्स इट विल विशिएट द होल प्रोसीडिंग, so whole trial can be declared because of that irregularity as null and void. Are you getting me? But 460 कौन सी irregularities की बात करता है, which do not vitiate the proceeding, तो वो कौन कौन सी है, इसमें लिखा हुआ है, if any magistrate not empowered by law to do any of the following thing, namely, अब इसमें जैसे दो चीजें हमने अभी कवर करी हैं, फर्स्ट to take cognizance of an offense under clause A or clause B of subsection 1 of section 190। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए वो एम्पावर्ड नहीं था टू टेक कॉग्निजेंस, अंडर क्लॉज ए कौन सा था, कंप्लेंट, बी कौन सा था, पुलिस रिपोर्ट, ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190, बट उसने कॉग्निजेंस ले लिया। सेकंड, टू मेक ओवर अ केस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 190, या फिर उसने इसमें मिस्टेक करी है। अब कैसी मिस्टेक करी है, erroneously, in good faith, does that thing, his proceeding shall not be set aside merely on the ground of his not being so empowered। इसका मतलब ये वाली जो इरेगुलरिटी है, ये वाली जो मिस्टेक्स हैं which are covered here in subsection 4 in section 460, they will not set aside the whole trial। clear to you? बट इसी के कंपैरिजन में ये वाली जो प्रोसीडिंग है, irregularities which may vitiate the trial, which vitiate the whole proceeding, ये कौन सी है, if any magistrate not so empowered by law in this behalf does any of the following things, ठीक है, जैसे कि उसने अटैच कर दी या डिमांड ऑफ फॉर सिक्योरिटी कर दिया,
तो ये वाला अगर कोई भी वो एक्शन कर देता है तो दैट विल विशिएट दी होल ट्रायल। अब ये इसमें एक और था, याद करो टेकिंग कॉग्निजेंस में 190 में एक थर्ड वन जो था दैट इज था सो मोटो और ऑन हिज ओन knowledge. So that means if a magistrate take cognizance under clause C of subsection 1 of section 90, ठीक है, वो करा है उसने, then that can vitiate the whole trial. Are you getting this thing? तो ये वाली जो irregularities है that will vitiate the whole trial. अब दोबारा से आ जाओ 201 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, इफ द कंप्लेंट इज मेड टू अ मजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, he shall, if the complaint is in writing, return it for presentation to the proper court with an endorsement to that effect. If the complaint is not writing, direct the complainant to the proper court. So what do you think? This kind of irregularity अगर हुई है, who is not competent to take cognizance, but उसने cognizance ले लिया, तो ये वाली जो irregularity है, ये कैसी मानी जाएगी? Whether it will come under section 460 or 461? This is my simple question to you. Are you getting my question? हाँ जी बेटा बताओ। मैम शायद 461। क्यों पायल 461 क्यों? मैम बिकॉज अभी इसके अंदर हमने के सेक्शन जो क्लॉज पढ़ा था उसके अंदर टेकिंग कॉग्निजेंस की बात की थी। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक पेज बताती हूँ, रुको जस्ट अ सेकेंड। हाँ एक सेकेंड रुको, ये है एक सेकेंड, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पेज नंबर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग के लिए देख रही हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। बेटा मैं इस पॉइंट को देखने की कोशिश कर रही हूँ, 2 मिनट और दो मुझे। बेटा पेज नंबर 261 ऑफ द केलकर, ये मेरे पास न्यू एडिशन है। आप में से किसके पास केलकर है? केलकर है आप लोगों के पास में से किसी के? नहीं है? अच्छा एक सेकंड दो, फिर मैं फोटो क्लिक करती हूँ उसकी,
फिर तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ 1 सेकंड किसी एक स्टूडेंट के साथ। शेफाली आप क्लास में हो ना अभी? यस मैम। शेफाली हाँ बेटा, मैं 1 सेकंड मेरे को दे, मैं शेफाली मैंने ना एक पेज का स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ शेयर करा है। यस मैम। बेटा मैं आपको प्रेजेंटर बना रही हूँ, प्लीज अपने मोबाइल से इसको जो है शेयर करो, ठीक है? एक बारी हैंड रेज करो। हाँ डन। अब बेटा स्क्रीन शेयर कर और उसको शेयर कर जरा। आपको स्क्रीन शेयर करना आता है ना शेफाली बेटा? यस मैम, इज इट विजिबल? हाँ बेटा ये आ तो रहा है, थोड़ा सा उसको वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, मतलब टिल्ट करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा दूसरे उस पे आ रहा है, मतलब रीडेबल नहीं है। मैम ये जूम नहीं हो रहा है। रोटेट कर, रोटेट कर, रोटेट हो पा रहा है? नहीं हो रहा रोटेट। मैम अच्छा इसका दूसरा तरीका फिर ये है, तुम अपने क्लासमेट्स का जो तुम्हारा ग्रुप है ना उसके ऊपर डालो इसको। नहीं रोटेट हो रहा तो तुम सब लोग अपने मोबाइल पे टेक्स्ट को ओपन करोगे। सबके पास आ गया ये टेक्स्ट? यस मैम, कर दिया शेयर। ठीक है शेफाली, आप ये जो पैराग्राफ है ना द एग्जामिनेशन, ये बेटा एक बारी रीड करो। द एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट। The examination of the complainant on oath is not a mere formality, and the dismissal of a complaint without such examination is illegal. A statement on oath. बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, द एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट ऑन ओथ इज नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तभी आप लोग याद करो, वहां पे शेयर लिखा हुआ था ना, द एग्जामिनेशन इज मस्ट अंडर सेक्शन 200, बट उसके कुछ एक्सेप्शन थे, 2 एक्सेप्शन थे, पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट। बट उनके ऊपर भी क्या एक रूल था कि इट शुड बी इन द कंप्लेंट शुड बी इन राइटिंग, ठीक है? तो इसका मतलब एग्जामिनेशन इज मस्ट। अगर एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो होल प्रोसीडिंग कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल, ठीक है? तो वो कैसी इरेगुलरिटी हो गई, विच वे मे विशिएट दी होल ट्रायल, राइट पायल? है ना बेटा? बेटा समझ रहे हो प्लीज? हाँ पायल बोलो बेटा, समझ रहे हो ना? ठीक है आगे पढ़ो बेटा प्लीज शेफाली। A statement on oath falls in a distinct category and cannot be equated with a statement which may be made without taking oath. The Yes. legislative. हाँ the legislative The legislative uh, object object by the object in requiring the statement on oath cannot be allowed to be superseded by the provisions of section 465. However, it is not necessary that the magistrate taking cognizance must invariably examine the witnesses named in the petition of complaint, nor is it necessary for the magistrate to record reasons for summoning.
If after examining the complainant on oath and after finding prima facie case against the accused, process is issued to the accused, then simply because the witness, if any, were not examined by the magistrate, would not vitiate the proceedings under section 200. It अब has इसका been मतलब क्या है, एक सेकंड रुक बेटा, देखो बेटा, अगर एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं हुआ तो दैट विल विशिएट द प्रोसीडिंग, लेकिन अगर कोई विटनेस है तो उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, बट अगर नहीं हुआ तो डू यू फाइंड दिस इज एन इरेगुलरिटी, दैट इज अ मिस्टेक? यस, इट इज अ मिस्टेक, बट इसमें उसका एग्जामिनेशन जो है विटनेस का वो मैंडेटरी नहीं है बेटा, और दैट इज व्हाई इट विल नॉट विशिएट द होल प्रोसीडिंग। आर यू गेटिंग मी? मैंने ये टॉपिक आपको क्यों इंटरलिंक कराया है यहाँ पे? देखो बेटा, इरेगुलरिटी है, बट एक इरेगुलरिटी है विच इज इन 460, which is an irregularity but which will not affect the trial or proceeding. Another irregularity is in section 461, which is an irregularity and it is considered as a blunder, जिसको rectify नहीं कर सकते आप, you cannot rectify, so this irregularity may amount to declare the whole trial or whole proceeding as illegal, right? तो आप समझ रहे हैं इस चीज को? Are you getting this thing? बेटा ये फुल एक्सरसाइज प्लीज देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को थोड़ा सा इस लेवल पे हम जुडिशरी लेवल पे समझाते हैं ऐसे ही, बट आप लोग जितना समझ पाएंगे मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर आप लोगों को नहीं आएगा, मैंने इसीलिए आपको सिर्फ ये डेमो दे रही हूँ मैं पढ़ाने का, कि ये एक तरीका हो सकता है, एक ये हो सकता है, आप लोगों को अगर नहीं आएगा मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूंगी। ये लेवल हमारा जुडिशरी में होता है, नेट में होता है, जब मैं नेट के लिए कराती हूँ या एलएलएम लेवल पे हम जब डिस्कस करते हैं या पीएचडी लेवल पे या उसके लिए, तब हम ऐसे ही कराते हैं, बट एलएलबी लेवल पे हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट उस लेवल पे अगर कैच कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, ठीक है? तो आई एम ट्राइंग ऑनली, आप लोग आपकी वोटिंग कराएंगे, आप जो कहेंगे वैसे ही करेंगे टॉपिक को आगे। आगे चलो बेटा। It has been held that an accused cannot get a magistrate's order issuing process set aside on the ground that the magistrate's examination of the complainant and his witnesses was improper. In some देखो, cases, जस्ट वेट बेटा, ये लाइन यहीं पे हमारा आंसर छुपा है। अब आपको जैसे जैसे मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, डीजीएस का जो लेवल होता है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का, हु वांट टू गो फॉर दिल्ली जुडिशियल सर्विस, उनको ये चीजें समझनी यहीं पे आनी चाहिए, अदरवाइज आप पूरी एलएलबी पढ़ोगे फिर आप जुडिशरी की कोचिंग करोगे तब आपको समझ में आएगी, बट दोज हु हैव द टारगेट टू गो फॉर दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, दे शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस टाइप का लेवल रहता है कि it has been held that an accused cannot get a magistrate order issuing process set aside नहीं करवा सकता on the ground that the magistrate examination of the complainant and his witnesses were improper या was improper। तो पायल, इसका मतलब जो आप कह रहे थे ना बेटा कि मैम ये improper होगा, वो improper नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस लाइन। और ये डिसीजन किस केस का है? दुर्वासा वर्सेस चंद्रकला 1994, क्रिमिनल लॉ जर्नल 3765। दिस इज द केस, दिस इज द अथॉरिटी ऑन दिस पॉइंट। ठीक है बेटा, तो दिस विल नॉट विशिएट द होल ट्रायल, सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर सेट असाइड नहीं कराया जा सकता, राइट? आर यू गेटिंग? yes, ma'am. यहीं तक मुझे रीड करवाना था आपको, ठीक? अब आ जाओ दोबारा से। अच्छा, 10:48 हो गए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा 201 तक हुआ है, 202 और 3 रह गया। अभी इसका ये समझ लो हमारा 70% काम हुआ है। 202 और 3 जब करा दूंगी तब मैं आप लोगों से वोटिंग करवाऊंगी, आपको पूछूंगी कि बताओ हम कौन सी मेथडोलॉजी पे जाएं, ठीक? एक मिनट रुको जरा, मैं अटेंडेंस शीट डाउनलोड कर लूं पहले। तो आज का जो सेकंड लेक्चर है उसमें मैं 202 और 3 कराऊंगी आपको।